Hello student, how are you? I am fine. Myself Bobby Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. So in this lecture, we will solve different questions from the probability chapter and for class 12. Okay, so in this chapter I think we will solve different questions from the conditional probability, and I think in the second lecture we had discussed various questions and various concepts regarding this conditional probability. Okay, so today we will also solve this conditional probability questions including the multiplication theorem, which is completely based on the conditional probability concept. Okay, multiplication theorem. Okay, so this concept is very important, and some interesting questions will also be solved using this concept, this multiplication theorem concept. Okay, just try to concentrate on this lectures properly, and I think so that you can get more and more concepts and this knowledge from my lectures and from the solvings as well. Okay, so आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोग स्टार्ट करें. ठीक है, पेन और पेपर लो और जस्ट स्टार्ट करो. ओके, नाउ a pair of dice is thrown. A pair of dice is thrown. A pair of dice is thrown. A pair of dice is thrown if the two numbers appearing on them are different. A pair of dice is thrown. Pair of dice is thrown if the two numbers appearing, if the two numbers appearing on them are different, find the probability of question number 1. The sum of the numbers is 6. The sum of the numbers is 6. Question number 2. The sum of the numbers is 4 or less. The sum of the numbers is 4 or less. 4 या फिर 4 से छोटा. थर्ड है, sum of the numbers is 4. Sum of the numbers is 4 only. ठीक है, so that means here what is given is a pair of dice is thrown if the two numbers are appearing, that means two numbers appearing on them are different. This is the given part. So in this conditional probability question, one part will be given and another part will have to be found. And the another part is what? Three parts are there. First part is this: the sum of the numbers is 6. You need to find the probability of that event where some outcomes will come. Provided that the sum of the numbers is 6. Sum of the numbers is 6. Okay, that means जो outcome में sum of the number 6 आएगा उसका ही आपको probability निकालना है. So at first you need to figure out the events. How many events are there? Some given events and some required events. Okay, so here pair of dice is thrown. That means total sample space तो आपका वही है 36 events. Okay, 36 outcomes. 36 outcomes ये तो हम लोग जानते ही हैं. A event A equals to क्या है? Two numbers appearing on them
appearing on them are different. Appearing on them are different. So that means which outcomes will be there? दोनों में different. That means डॉबलेट नंबर्स के अलावा बाकी जो है वो सब आएगा. डॉबलेट्स के अलावा, डॉबलेट्स में तो यहाँ पर सिर्फ दो सेम नंबर आता है, उसके अलावा तो बाकी सब में ही तो टू डिफरेंट नंबर्स आता है कि नहीं? जैसे 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, टू डिफरेंट नंबर्स. ओके. सिमिलरली 2,1, 2,2 नहीं आएगा, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6. Similarly 3,1, 3,2, 3,3 नहीं आएगा, 3,4, 3,5 and 3,6. तो ऐसे करते 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 आपके पास 6,1, 6,2, 6,3, 6,4 and 6,5. These are the outcomes. These are the elements of B event. आपका क्या है? B event. ये तो given, ये तो given है, हर के लिए given है. अब B event, the sum of the numbers is 6. Sum of the numbers is 6. तो लिखो here B equals to, here B equals to sum of the numbers is 6, no? Is 6, exactly 6 ही होना चाहिए. तो ऐसा ऐसा आउटकम कौन सा है? 1,5 है, 5,1 है. ओके. 2,4 है, 4,2 है, 3,3 है कि नहीं? फिर 5,5 का भी हो गया और 6 का तो होगा नहीं. ठीक है. so that means ये बी इवेंट है. सी इवेंट क्या है? जो सम है वो 4 होना चाहिए या फिर लेस देन 4 होना चाहिए. दैट मीन्स 1,1, 1,2, 1,3. ये देखो 4 या फिर 4 से छोटा, उससे ग्रेटर नहीं जा सकते हम लोग. दैट मीन्स 1,4 शुड नॉट बी इंक्लूडेड. ओके. 1,1, 1,2. अच्छा 2,1 हो गया, 2,2 भी होगा. ठीक है. फिर 3 में जाएंगे तो 3,1 इन्वॉल्व होगा. 3,2 तो 5 हो गया, 4 से ज्यादा हो जाएगा. और 4 में तो जा नहीं सकते, 4,1 ही तो 5 हो जाता है. दैट मीन्स 3 में ही स्टॉप. तो दैट मीन्स ये है आपका सी इवेंट, है कि नहीं? अच्छा. लास्ट का डी इवेंट क्या है? सम इज 4, एग्जैक्टली 4. सो दैट मीन्स सम इज 4 होने से कौन सा होता है? 1,3, 3,1, 2,2 and 3,3 तो already taken. So these are the events. So firstly you need to find the probability of event B with respect to A according to the question that you can see. Okay. P of B by A निकालना है मुझको पहले. ठीक है. तो फॉर्मूला क्या बनता है? P of A और इधर P of A इंटरसेक्शन B. तो उसके लिए तो मुझे A इंटरसेक्शन B निकालना है. कितना है A इंटरसेक्शन B? यहाँ पर कितना होगा? देखो, दैट मीन्स A इवेंट और B इवेंट के बीच क्या क्या कॉमन है? 1,5, 1,5 कॉमन. ठीक है. 1,5, 1,5 कॉमन. 5,1 आएगा क्या? ऑब्वियसली आएगा. 5,1 भी आएगा. दैट मीन्स ए इवेंट क्या था? डिफरेंट एलिमेंट्स था. डिफरेंट ए इवेंट क्या था? डिफरेंट एलिमेंट्स. ये सब तो डिफरेंट एलिमेंट्स ही है, ये छोड़ के. दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी में हियर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू, लिख लो, 1,5, 5,1, 2,4, 4,2. That means 4 टोटल
4 इवेंट्स है कि नहीं? सो P ऑफ A इंटरसेक्शन B 4/36, ठीक है? P ऑफ A कितना है? P ऑफ A है यहां पर 6 एलिमेंट के अलावा बाकी सभी तो है, सिर्फ डॉपलेट्स नहीं है, तो डॉपलेट्स के अलावा बाकी सभी तो है, तो P ऑफ A क्या होगा? P ऑफ A यहां पर 30/36 होगा। सो दैट मीन्स यहां पर जो है वैल्यू बिठाओ, P ऑफ A दैट मीन्स 4/36 और 30/36, 36 कैंसल, 4/30 तो दैट मीन्स 2 और यहां पर 15, 2/15 इज द आंसर, ठीक है? ये सब लिख लो पूरा, ये पूरा जितना सारा इवेंट्स है सब लिख लो। फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ये इवेंट बी का प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है। इवेंट बी का सॉरी P ऑफ C/A निकालना था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? इवेंट C का प्रोबेबिलिटी निकालना था विद रिस्पेक्ट टू A, है कि नहीं? तो दैट मींस C/A, तो C/A मतलब क्या होगा? P ऑफ C इंटरसेक्शन A बाई P ऑफ A। तो यहां पर हियर C इंटरसेक्शन A क्या होगा? C A तो था कौन सा था? A in A event each and every elements that means numbers are same, numbers are different actually, okay, not same। so यहां पर देखो सिर्फ यही इंक्लूड नहीं होगा, बाकी सब इंक्लूड होगा। सब में देखो ये भी इंक्लूड नहीं होगा, तो दैट मीन्स 1 2 3 4 4 इवेंट, दैट मीन्स 1,2 1,3 and 1,3 2,1 and 3,1 4। so P of C इंटरसेक्शन A, ये फिर इंटरसेक्शन C, बात एक ही है, तो यहाँ पर 4/36, ठीक, यहाँ पर बिठा दो। so ये क्या होगा? 4/36 बाई P ऑफ A कितना है? 30/36, so that means 4/30, that means 2/50, ठीक है? 2/50। अब थर्ड क्वेश्चन क्या था? थर्ड है डी का निकालना है। थर्ड किसका निकालना है? डी का, है कि नहीं? सो दैट मीन्स जस्ट निकालो थर्ड P ऑफ B/A, B इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू A, दैट मीन्स P ऑफ A इंटरसेक्शन D बाई P ऑफ A। तो A इंटरसेक्शन D ये निकाल दो, A इंटरसेक्शन D क्या होगा? D इवेंट तो ये है, दैट मीन्स 1 2 सिर्फ 2 आएगा, 2 ये 2 इवेंट आएगा इसमें, 1,3 एंड 3,1। सो दैट मीन्स P ऑफ A इंटरसेक्शन D कितना होगा? 2/36, दैट मीन्स 2/36 बाई 30/36, so that means 2/30, that is 1/15 is the answer। that means D event का probability with respect to A will be 1/15। that means according to this question 4 इवेंट दिया गया है A B C D, उसमें से A already happened, so that means whatever the probability is going to be found, that should be actually with respect to A इवेंट, बिकॉज A इवेंट ऑलरेडी हैपन हो गया, दैट मींस घट चुका है। उसके ऊपर बेस करके बाकी जो रेस्ट ऑफ दिस 3 इवेंट्स प्रोबेबिलिटी विल हैव टू बी फाउंड विद रिस्पेक्ट टू A इवेंट। दैट मींस इसलिए हम लोगों ने B इवेंट का प्रोबेबिलिटी A इवेंट के रेस्पेक्ट में निकाला है, B/A। C इवेंट का प्रोबेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू A निकाला है, D इवेंट का प्रोबेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू A निकाला है, ठीक है? यहाँ पर क्वेश्चन में जैसे बताया जाएगा आपको वैसे ही प्रोसीड करना है। यहाँ पर तो क्वेश्चन में बोला गया A इवेंट ऑलरेडी हैपन, अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी। 3 क्वेश्चन दिया होता है, तीनों क्वेश्चन 3 इवेंट है, B C D, है कि नहीं? फिर नेक्स्ट जाओ, इन स्कूल, अच्छा
consider the experiment of throwing a die. Consider an experiment of throwing a die. मतलब एक्सपेरिमेंट हुआ है डाई थ्रो करने का, ठीक है, यही मतलब बोलने का मतलब ये होता है। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाई। कंसिडर द एक्सपेरिमेंट of throwing a die. Okay, throwing a die. If a multiple of 3 comes up, if a multiple of 3 comes up, throw the die again. Throw a die again. Okay. And if any other number comes up, toss a coin. Very complicated question. Toss a coin. Find the conditional probability of the event. Find the conditional probability of the event. Find the conditional probability of the event. The coin shows a tail. Given that at least one die shows a 3. That means क्वेश्चन ये है, find the conditional probability of the event. The coin shows tail. Given that at least one die shows 3. At least one die shows 3. That means एक डाई थ्रो किया गया, ठीक है। अब डाई में तो 1 2 3 4 5 6 these are the outcomes. Okay. So if consider the experiment throwing a die of a multiple of 3, अगर 3 का multiple आया, then throw a die again. That means the same die should be thrown again. If the multiple of 3 comes up, मतलब आपने डाई थ्रो किया, थ्रो करने के बाद अगर मल्टीपल ऑफ 3 आया, दैट मीन्स 3 और 6 आया, तो तब आप क्या करेंगे, मतलब शर्त ये है कि फिर से आप डाई थ्रो करेंगे। तो फिर से अगर मैं डाई थ्रो करूंगा, आउटकम्स क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 दीज आर द पॉसिबिलिटीज। ओके, तो इन द सैंपल स्पेस ऑल द आउटकम्स शुड बी कंप्राइज्ड। ओके, सो यहां पर आउटकम्स क्या क्या आएगा, देखो कैसे आएगा आउटकम्स। देखो पहले अगर 3 या फिर 3 के साथ मल्टीपल आया, दैट मीन्स 3 और 6 दो ऑप्शन है, तब आप फिर से डाई थ्रो करेंगे। तो उस डाई में थ्रो करने के बाद 6 आउटकम आएगा, ठीक है। सेकेंड केस है, अगर 3 नहीं आया, दैट मीन्स 3 या फिर 3 के मल्टीपल जो है वो नहीं आया। देखो इफ एनी अदर नंबर कम्स अप, दैट मीन्स मल्टीपल के अलावा दूसरा कोई नंबर आए, तो आपको क्या करना है, टॉस ए कॉइन, दैट मीन्स एक कॉइन टॉस करना है, ठीक है। तो कॉइन टॉस करने से 2 आउटकम आता है, हेड और टेल।
तो टोटल आउटकम्स यहाँ पर कितना बनता है, थोड़ा देखो ठीक तरह से मैं जो बना रहा हूं। हियर सैंपल स्पेस, देखो पहले आपको बोला गया कि 3 या फिर 3 का मल्टीपल जो है वो आना चाहिए, ठीक है। तो 3 पहले थ्रो में, फर्स्ट थ्रो 3, ठीक है। अगर 3 आया तो यहां पर देखो क्या करना है आपको, थ्रो ए डाई अगेन, आपको डाई फिर से थ्रो करना है। तो फिर से अगर मैं डाई थ्रो करूं, आउटकम्स क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। तो दैट मीन्स ये 1 2 3 4 5 6 सबके साथ 3 का रिलेशन बनेगा। दैट मीन्स अगर 3 आया, देखो 3 4 3 5 3 6, या फिर 6 भी आया, 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6। So that means फर्स्ट ड्राई में 3 या फिर 3 का मल्टीपल अगर आया तो सेकेंड टाइम हम लोगों को क्या थ्रो करना है, फिर से डाई थ्रो करना है। तो डाई थ्रो करेंगे, दैट मीन्स दीज आर द आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 पॉसिबिलिटीज, है कि नहीं। तो सैंपल स्पेस में पॉसिबिलिटीज आना चाहिए, ठीक है। अब अगर फर्स्ट थ्रो में मल्टीपल, ये 3 का मल्टीपल अगर नहीं आया, इट मीन्स 3 और 6 नहीं आएगा। बाकी सब नंबर्स अगर आए तो 3 और 6 के अलावा और क्या नंबर है आपके पास, 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 4 नंबर है आपके पास। अगर ये 4 नंबर आपके पास आया तो आपको क्या करना है, सेकंड में पॉइंट टॉस करना है। अब पॉइंट टॉस में है, जैसे यहां पर देखो 1 2 4 5, दैट मीन्स फर्स्ट डाई में ये सब बाकी रह गया। अब सेकंड डाई में दैट मीन्स जब आप सेकंड बार थ्रो करेंगे, हेड और टेल आएगा, यही तो शर्त है। और उसमें क्या था, 3 और 6 पहले डाई में आएगा, और उस डाई में 1 2 3 4 5 6, यही तो शर्त है। अगर फर्स्ट थ्रो में 3 और 6 आया तो आपको सेकंड थ्रो में क्या करना है, सेकेंडली क्या करना है, डाई को फिर से थ्रो करना है, ठीक है। तो दैट मीन्स डाई को फिर से थ्रो करने से यहां पर पॉसिबिलिटीज बन जाता है कि 3,1 आए, 3,2 भी आ सकता है, 3,3 भी आ सकता है, 3,4 3,5 3,6, 6,1 भी आ सकता है, 6,2 भी आ सकता है, 6,3 6,4 6,5 6,6। इसलिए ये सब आउटकम्स बना, है कि नहीं। तो यहां पर तो एक्टिविटी 2-2 हो रहा है ना, तो आउटकम्स का तो पेयर ही बनेगा, यहाँ पर एक थ्रो तो नहीं हो रहा है यहाँ पर, है कि नहीं, ठीक है ना। फिर सेकंड टाइम में क्वेश्चन में क्या बोला गया, अगर ये 3 और 6 नहीं आया, दैट मींस ये सब नंबर आया, तो आपको है मतलब पॉइंट टॉस करना है। पॉइंट टॉस करने से आपको ये 2 आउटकम मिलेगा। सो दैट मीन्स दोनों मिला के अभी पेयर बनाएगा। दैट मीन्स 1,H 1,T 1,H 1,T 2,H 2,T 3 तो नहीं होगा, 4,H 4,T 5,H 5,T। तो दैट मीन्स ये सब आउटकम्स आएगा। तो दिस इज द सैंपल स्पेस, टोटल सैंपल स्पेस, ओके। नाउ according to this question, find the conditional probability of the event the coin shows a tail। आपको इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना है कि टेल शो कर रहा है। दैट मीन्स यहां पर जो भी आउटकम्स आपको मिला वो सब आउटकम में टेल जो है वो अगर शो कर रहा है, गिवन दैट at least one die shows 3, at least one die shows 3, कम से कम एक डाई तो 3 शो करना चाहिए, ये गिवन है। so that means ये सैंपल स्पेस है। तो इस सैंपल स्पेस में जो गिवन इवेंट है वो कौन सा आएगा, एटलीस्ट एक बार 3 शो होना चाहिए। दैट मीन्स देखो 3 शो, एटलीस्ट एक बार 3 शो होना चाहिए। दैट मीन्स
ये पूरा पार्ट आएगा, ठीक है। ये 6,3 भी आएगा, ठीक है। एटलीस्ट एक बार 3 शो होना चाहिए, ये बी इवेंट है, ठीक है। और ए इवेंट क्या है कि टेल, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट व्हेन द कॉइन शोज ए टेल। कॉइन जो है टेल शो कर रहा है, दैट मीन्स ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, है कि नहीं, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मतलब मेन थीम है वो बोला गया, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ठीक है। एक डाई थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट में मतलब फर्स्ट जो है आप एक डाई थ्रो करेंगे, आप एक डाई थ्रो करेंगे, करने के बाद आउटकम्स आएगा। अब आउटकम्स में तो कुछ भी आ सकता है। क्वेश्चन में बोला गया अगर आउटकम 3 या फिर 3 का मल्टीपल ऐसा कुछ आया, तो मीन्स 3 या फिर 3 का मल्टीपल क्या होगा, 3,6 ही होगा, है कि नहीं। तो 3,6 अगर आया तो आप मतलब उसी डाई को, सेम डाई को ही आप सेकंड टाइम थ्रो करेंगे। तो सेकंड टाइम थ्रो करने के बाद ये सब आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 ये सब आउटकम्स आएगा। तो पहले आउटकम क्या आया था, मतलब पहले फर्स्ट में 3 और 6, सेकंड में 1 2 3 4 5 6। तो जब आप लोग पेयर बनाएंगे तो हर एक के साथ तो यहाँ पर एक बॉन्डिंग बनेगा, 3,1 3,2 3,3 जस्ट लाइक रिलेशन बॉन्डिंग, ओके। 3 के साथ भी सबका होगा, 6 के साथ भी सबका होगा, क्योंकि ये तो 3 और 6 आने के बाद ही तो डाई थ्रो किया गया है ना। तो 3 और 6 दोनों के साथ ही तो इसका रिलेशन होगा, है कि नहीं। ये तो गया, फर्स्ट आपको मिल गया ये इवेंट्स। फिर दूसरा जो है उसमें बोला गया कि अगर 3 और 6 नहीं आया, तो 3 और 6 नहीं आया मतलब कौन सा नंबर्स बाकी है, 1 2 4 5। अगर ये सब नंबर्स आया तो हम लोग एक कॉइन टॉस करेंगे। अब कॉइन टॉस करने से 2 आउटकम आता है, हेड और टेल। तो दैट मींस इधर है आपका 1 2 4 5 और इधर है हेड और टेल। तो फिर से रिलेशन बॉन्डिंग होगा 1H 1T, तो फिर 2H 2T, 4H 4T, 5H 5T। यही तो हम लोगों ने लिखा है। सो ये सब पूरा एक्सपेरिमेंट मिलके सब आउटकम्स, दीज आर द आउटकम्स, ओके। ये सब आउटकम्स मिलके एक सैंपल स्पेस बनाया गया है। नाउ यू नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी of that event where find the event of the event that shows this coin shows a tail। that means coin जो है वो tail show कर रहा है, उसका probability आपको निकालना है। given that at least one die shows 3, मतलब given क्या है, die जो है एक बार कम से कम 3 शो होना चाहिए, ठीक है। So that means यहाँ पर लिखो A event equals to, here A event equals to, here A equals to at least one die shows 3। B इवेंट क्या है, coin shows tail, ठीक है। सो A इवेंट इसमें कौन सा आएगा, एटलीस्ट एक बार 3 आना चाहिए। तो दैट मीन्स ये पूरा 3 का एक सीरीज आएगा, 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 and 3,6। फिर 6,3 आएगा, ठीक है। तो यही होगा, कम से कम एक बार तो हर एक इवेंट में 3 शो होना चाहिए। फिर सेकेंड बी इवेंट जो है, बी इवेंट जो है वो क्या है, कॉइन जो है वो टेल शो करना चाहिए। दैट मीन्स 1 2 3 4। दैट मीन्स 1, T 2, T
4, t and 5, t. So P of A equals to कितना है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 7 बाई इसमें कितना है तो और P ऑफ B क्या है P ऑफ B 1 2 3 4 4 बाई 20 तो यहाँ पर टोटल ये जो आउटकम्स का सैंपल स्पेस है। अब मुझे निकालना है मुझे यहाँ पर क्या निकालना है क्वेश्चन क्या था नाउ आपको निकालना है P ऑफ B बाई A P ऑफ B बाई A निकालना है। गिवन कौन सा था गिवन दैट एटलीस्ट 1 डाई शोज 3 ये गिवन है दैट मींस A तो नीचे आएगा। निकालना क्या है B इवेंट का निकालना है कॉइन शोज टेल इस इवेंट का आपको निकालना है। अच्छा तो इसका फॉर्मूला क्या है P ऑफ A इंटरसेक्शन B बाई P ऑफ A। अब मुझे बोलो A इंटरसेक्शन B इसका आंसर क्या है A इंटरसेक्शन B कुछ कॉमन आएगा दोनों में देखो कुछ कॉमन नहीं है दैट मींस 5 तो जब आप P ऑफ 5 निकालेंगे तो आंसर 0 बाई A जो भी हो आंसर इज 0 आंसर इज व्हाट 0 so that means this event is impossible event that's why this probability is coming 0 क्यों यहां पर इम्पॉसिबल इवेंट आ रहा है देखो ठीक तरह से देखो यहां पर बोला गया है क्या है गिवन है कि डाइस जो है कम से कम एक बार 3 शो करना चाहिए ये गिवन है। आपको निकालना क्या है कॉइन टॉस में टेल आना चाहिए। अब ये दोनों इवेंट में कुछ कॉमन है क्योंकि क्वेश्चन को ठीक तरह से पढ़ो ये कॉइन टॉस का बात जो है कब बोला गया जब 3 ना आए तब जब आपने डाई थ्रो किया है उसमें अगर 3 या फिर 6 ना आए तब आपको कॉइन टॉस करना है दैट मींस कॉइन टॉस में जो पॉसिबिलिटी दैट मींस जो आउटकम्स आएगा वो सब आउटकम्स का रिलेशन किसके साथ होगा 1 2 4 5 3 और 6 के साथ नहीं होगा क्योंकि 3 और 6 आने से तो कॉइन टॉस नहीं करना है 3 और 6 आने से तो मुझे डाई को सेकंड टाइम थ्रो करना है तो दैट मींस ये दोनों इवेंट में कुछ भी कॉमन नहीं है दैट मींस A इंटरसेक्शन B इज 5 नथिंग इज कॉमन हियर दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है। कैसे हम लोग यहाँ पर A इंटरसेक्शन B निकाल लें 5 होगा। क्वेश्चन का डेप्थ थोड़ा क्वेश्चन का थीम जो है वो आपको समझना है ठीक है। दोनों इवेंट के बीच अगर रिलेशन होता तो A इंटरसेक्शन B कुछ ना कुछ मिलता अगर कॉमन एलिमेंट्स कुछ होता देयर इज नो कॉमन नो बिकॉज देयर इज नो रिलेशन of this 3 and this tail क्योंकि क्वेश्चन में ठीक उल्टा बोला गया है तो 3 आने से आपको कॉइन टॉस नहीं करना है। अब जब कॉइन टॉस ही नहीं होगा हेड और टेल आने का पॉसिबिलिटीज कहाँ है नहीं। अब 3 नहीं आएगा तो यहां पर एक क्वेश्चन बन सकता था। यहां पर अगर क्वेश्चन में बोला गया बी इवेंट ये जो है ये ए इवेंट अगर ऐसा बोला जाता कि no die shows 3 none of these dies shows 3 that means दोनों में से कोई भी ये डाई जो है 3 शो नहीं करता तब ये दोनों के बीच रिलेशन बनता A इंटरसेक्शन B कुछ मिलता ठीक है। यहाँ पर 3 शो नहीं करता that means 3 या फिर 6 शो नहीं करेगा मल्टीपल ऑफ 3 शो नहीं करेगा that means what कौन सा शो करेगा 1 शो करेगा 2 शो करेगा 4 करेगा 5 करेगा और ये 1 2 4 5 के साथ ही तो हेड और टेल का रिलेशन है। यहाँ पर 3 और 6 का तो मैंने डायग्राम यहाँ पर बनाया था वो डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। 3 और 6 के साथ कोई भी यहाँ पर रिलेशन नहीं है हेड और टेल का इसलिए प्रोबेबिलिटी 0 निकला है नहीं क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो ये है कि दोनों इवेंट जो है एक दूसरे के साथ रिलेशन होना चाहिए तब जाके कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको मिल सकता है। यहाँ पर दोनों इवेंट्स के बीच रिलेशन ही नहीं है कहां से प्रोबेबिलिटी आप निकालें। नेक्स्ट इन ए स्कूल
there are 1000 students. In a school there are 1000 students. In a school there are 1000 students. ठीक है, in a school there are 1000 students. In a school there are 1000 students. 1000 students. Okay. Out of which 430 are girls. Out of which 430 are girls. ठीक है, 430 are girls. 10% of the girls, 10% of the girls study in class 12. Okay. What is the probability that a student, what is the probability that a student is chosen randomly what is the probability that a student chosen randomly studies in class 12, randomly probability of a student chosen, probability of a girl student chosen randomly studying in class 12, class 12, given that the student was a girl. मतलब जितना सारा क्वेश्चंस कर रहे हैं वो सब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं. यहाँ पर देखो 1000 स्टूडेंट्स हैं ओवरऑल, पूरे होल स्कूल में 1000 स्टूडेंट्स हैं. उसमें से 430 गर्ल है. बॉयज कंसिडर नहीं करना है बिकॉज हियर ऑल द इवेंट्स आर रिलेटेड टू गर्ल्स, नॉट द बॉयज. तो यहाँ पर ये 430 गर्ल्स के ऊपर ही जो मुझे करना है वो करना है. ठीक है, जो चूज करना है, वो जो इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना है, सब गर्ल्स के ऊपर है, बॉयज के ऊपर कुछ नहीं है. तो यहाँ पर बॉयज का क्वांटिटी जो है वो मैटर नहीं करता. यहाँ पर आउट ऑफ 1000 गर्ल्स 1000 स्टूडेंट्स 430 आर गर्ल्स. ठीक है, एंड आउट ऑफ दिस 430 गर्ल्स ओनली 10% studying in, that means studying in 12th science. Studying in 12th science, that means 10% of 430, that is 43 students, girl student studying in science, 12th science. Now the question is that one student is chosen randomly. यहाँ पर एक स्टूडेंट चूज किया गया, ठीक है, फ्रॉम क्लास 12 से चूज किया गया. ठीक है, गिवन दैट शर्त यह है जो स्टूडेंट आपने चूज किया है वो गर्ल होना चाहिए. जो स्टूडेंट आपने चूज किया है वो गर्ल स्टूडेंट होना चाहिए. ठीक है, हाँ. तो यहां पर अल्टीमेटली क्वेश्चन क्या बोला गया, गिवन दैट, जो गिवन है वो क्या है, जो आपने गर्ल चूज किया है वो गर्ल होना चाहिए. दैट मीन्स आपने पहले गर्ल स्टूडेंट चूज किया, गर्ल स्टूडेंट आपने एक चूज कर लिया, गर्ल स्टूडेंट आपने चूज किया, वो 12 में पढ़ता है या फिर दूसरे किसी भी क्लास में पढ़ता है, नो मैटर इज दिस. ओके, सो एक्चुअली यह आपको एक गर्ल स्टूडेंट चूज करना है
सबसे पहले। फिर उसके बाद आपको यू नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस गर्ल स्टडिंग इन क्लास 12। ठीक है, दो इवेंट है। फर्स्ट इवेंट ये है कि गर्ल स्टूडेंट चूज करना है। सेकंड इवेंट ये है गर्ल स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 12। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? यहां पर फर्स्ट इवेंट ए, उसको लिखना है चूजिंग ए गर्ल स्टूडेंट। बी इवेंट ये है गर्ल स्टूडेंट स्टडिंग इन साइंस, स्टडिंग इन क्लास 12। ओके, ये दो इवेंट ही है आपके पास। ठीक है, तो लिखो हियर A event equals to 10% of 430. That means 43 students studying in class 12. Right? So P of A क्या होगा? 43 by 1000. टोटल स्टूडेंट तो 1000 है ना, तो प्रोबेबिलिटी तो आपको 1000 के रेस्पेक्ट में ही निकालना है। बी इवेंट क्या है? टोटल गर्ल्स, दैट मीन्स 430। अब दैट इज पी ऑफ बी क्या होगा? 430 बाय 1000, राइट? नाउ you need to find the probability that a student chosen randomly studying in class 12 में पढ़ता है ऐसा एक स्टूडेंट आपने मतलब चूज किया। गिवन दैट द स्टूडेंट इज ए गर्ल। ठीक है, तो गिवन जो पार्ट है कौन सा होगा? गिवन दैट स्टूडेंट इज ए गर्ल, तो गर्ल स्टूडेंट का इवेंट का नाम क्या दिया है मैंने? ये टोटल गर्ल्स। सो दैट मीन्स यहां पर बी इवेंट गिवन है, ए इवेंट का प्रोबेबिलिटी मुझे निकालना है। सो दैट मीन्स पी ऑफ ए बाई बी। सो दैट मीन्स पी ऑफ A इंटरसेक्शन B बाई P ऑफ B। एक काम करो, यहां पर जो है P ऑफ A इंटरसेक्शन B है ना, A इंटरसेक्शन B क्या है? A इंटरसेक्शन B ये है, ये जो है ये A इवेंट नहीं होगा, ये A इंटरसेक्शन B इवेंट होगा। ठीक है, और यहां पर A इवेंट का जरूरत तो है नहीं। ठीक है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B होगा। क्योंकि देखो, सबसे पहले तो मुझे गर्ल स्टूडेंट चूज करना है, फिर उसके बाद क्लास 12 का गर्ल स्टूडेंट आएगा, तो दोनों में कॉमन है। सो ये जो 10% ऑफ 430 आपको दिखाई दे रहा है ना, तो ये एक्चुअली ए इवेंट और दैट मीन्स ए इवेंट यहां पर होगा स्टूडेंट्स स्टडिंग इन क्लास 12 क्लास में पढ़ता है वो सब स्टूडेंट्स को लेके एक इवेंट बनाया गया, वो ए इवेंट। ठीक है, इतना स्टूडेंट पढ़ता है हम लोग नहीं जानते। ठीक है, तो और ए इवेंट यहां पर जरूरत भी नहीं है। यहां पर ए इंटरसेक्शन बी मुझे चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी क्या है? बी क्या है? गर्ल्स। और ए क्या है? उसमें बॉयज भी होगा गर्ल्स भी होगा, दोनों में कॉमन क्या आएगा? ओनली गर्ल्स स्टूडेंट जो 12 में पढ़ता है वही तो आएगा ना। सो दैट मीन्स 10% ऑफ 430, यही तो है ना। 43 स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 12, 43 गर्ल स्टूडेंट। अब जो है वो निकाल लो। देखो P ऑफ A इंटरसेक्शन दैट मींस 43 by 1000 by 430 by 1000, दैट मींस 43 by 430 दैट इज 1 by 10। ठीक है, क्योंकि अगर मैं उसको ए इवेंट नाम दे देता हूं तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी मुझे चाहिए ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए। अब ए इंटरसेक्शन बी में कौन सा इवेंट लूं? यहां पर ओरिजिनली जो है ए इवेंट ए इंटरसेक्शन बी जो है ये 10% ऑफ 430 है, और ए इवेंट यहां पर मैंने ले लिया
इस 12th क्लास में जितना बच्चा पढ़ता है वो ए इवेंट है, बी इवेंट है स्कूल में जितना सारा गर्ल्स हैं वो। अब ए इंटरसेक्शन बी कौन सा आएगा कि गर्ल भी होगा, 12th क्लास में भी पढ़ती है। दैट मींस क्वेश्चन में बोला गया कितना गर्ल्स 12th क्लास में पढ़ती है, 10% ऑफ 430, तो 10% ऑफ 430, 43 स्टूडेंट्स गर्ल स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 12। ठीक है, तो यहां पर आंसर है 1/10। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट, एन इंस्ट्रक्टर has a question bank consisting of 300 easy true false questions. An instructor has a question bank. 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 जैसे स्कूल कॉलेज में होता है ना क्वेश्चन बैंक, वही क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग कुछ क्वेश्चंस वहां पर कंसिस्ट होगा ऑब्वियसली, कंसिस्टिंग 300 easy true false questions, comma 200 difficult true false question, 200 difficult true false question। फिर क्या है, 500 easy multiple choice questions, 500 easy multiple choice question। फिर 400 difficult MCQ questions। ठीक है, अब इवेंट्स में जाएंगे क्या क्या है। If a question is selected at random, if a question selected at random, एक क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया, वो क्या है हम लोग नहीं जानते। सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी, व्हाट इज द probability if the questions selected at random, what is the probability that it will be any easy question, it will be easy question given that, शर्त है given that it is multiple choice question, it is MCQ question। लो ये आपका क्वेश्चन है, थोड़ा पढ़ो ठीक तरह से। So according to this question, some collection of questions are given in a question bank। Okay, 200 300 true false easy true false question, 200 difficult true false question, 500 easy MCQ questions, 400 difficult MCQ questions। If a question selected at random, one question selected at random, what is the probability that it will be easy question? इसी क्वेश्चन का प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है given that it is MCQ क्वेश्चन। given क्या है? MCQ
क्वेश्चन होगा वो गिवन है। सो दैट मीन्स यहाँ पर दो इवेंट है, एक इजी क्वेश्चंस का इवेंट है, दूसरा एमसीक्यू का इवेंट है। ठीक है, सो दैट मीन्स दो इवेंट है आपके पास। टोटल तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस होगा वो टोटल होगा कितना है 500 1000 1400 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। ठीक है, तो यहां पर पहला इवेंट जो है लिख लेते हैं हियर A equals to collection of easy questions, collection of easy question, प्रोबेबिलिटी ऑफ इजी क्वेश्चन निकालना है ना, तो इजी क्वेश्चंस का एक मैंने इवेंट बनाया। इजी क्वेश्चंस कितना है यहां पर देखो, वो कुछ भी हो 300 इजी और 500 इजी, दैट मीन्स 300 प्लस 500 टोटल इजी क्वेश्चंस है। वो एमसीक्यू भी हो सकता है, ट्रू फॉल्स भी हो सकता है, दैट मीन्स 800। सो दैट मीन्स पी ऑफ ए क्या होगा 800 पाई टोटल कितना है 1400। ठीक है, फिर बी इवेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस, एमसीक्यू एमसीक्यू दैट मीन्स ये दोनों ही तो एमसीक्यू क्वेश्चंस है ना, दैट मीन्स 900 500 प्लस 400 दैट इज 900। सो पी ऑफ बी क्या होगा 900 बाई 1400 है क्या नहीं? ठीक है, फिर P ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या होगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या होगा इजी B होना चाहिए। A इवेंट क्या है इजी है, B इवेंट क्या है MCQ है, तो कॉमन लेंगे तो क्या होगा इजी MCQ क्वेश्चन होगा, इजी MCQ क्वेश्चन। तो कितना है इजी MCQ क्वेश्चन 500 आई थिंक, क्वेश्चन में देखो 500 है। So P of A intersection B equals to 500 by 1400। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है what is the probability that it will be easy question given that मतलब MCQ क्वेश्चन जो वाला जो पार्ट है वो नीचे रहेगा। Here P of A by B निकालना है, that means P of A intersection B by P of B, that is 500 by 1400 divided by P of B क्या है 900 by 1400। 1400 तो वो कैंसिल, 500 by 900 that is 5 by 9, that is the answer। ओके, देखो कितना मतलब इंटरेस्टिंग है, सोचना पड़ेगा आपको, you should have the common sense। okay, so that means यहाँ पर दो टाइप का क्वेश्चंस दिया गया, ट्रू फॉल्स और एमसीक्यू। अब ट्रू फॉल्स में कुछ इजी डिफिकल्ट है, एमसीक्यू में कुछ इजी डिफिकल्ट है कि नहीं? अब आपको क्या करना है, आपको इजी क्वेश्चंस सिलेक्ट करना है, इजी क्वेश्चन सिलेक्ट करना है। ठीक है, शर्त यह है कि इजी क्वेश्चन तो मैं सिलेक्ट करूंगा, वेरी गुड, बट वो एमसीक्यू भी होना चाहिए। मैं वो ट्रू फॉल्स वाला पार्ट नहीं करूंगा, है कि नहीं, वो एमसीक्यू होना चाहिए। इसलिए मैंने दो इवेंट बना लिया, एक इजी क्वेश्चन का बना लिया, दूसरा एमसीक्यू का बना लिया। टोटल इजी क्वेश्चंस मैंने काउंट करके देख लिया कितना है, टोटल एमसीक्यू क्वेश्चंस मैंने देख लिया है कितना है काउंट करके, बस उसके बाद तो पी ऑफ ए बाई बी निकाल लिया। जस्ट आपको वो इवेंट्स जो है वो चूज करना, वहां पर ही आपको दिमाग यूज करना है। ठीक है,
ओके, फिर नेक्स्ट जाओ। टू इंटीजर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम। टू इंटीजर्स, दो इंटीजर आपको सिलेक्ट करना है एट रैंडम। रैंडम मतलब जहां से मर्जी वहां पर, जहां से मर्जी वहां से आप चूज कर सकते हैं। ऐसा कोई मतलब लिमिटेशंस या फिर बाइंडिंग्स नहीं है कि यहां से ही आपको चूज करना है। बट 1 और 11 के मतलब 1 से लेके 11 तक ही आपको चूज करना है, उसके बाहर आप नहीं जा सकते। 1 और 11 के बीच आप कोई भी नंबर अपने मन से चूज कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखो, टू इंटीजर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम। टू integers are selected at random, ठीक है, at random from integers from 1 to 10, from 1 to 10, sorry 1 to 11, 1 to 11. Then if the sum is even, if the sum is even, मतलब ये कंडीशन है। if मतलब कंडीशन है, गिवन है, ठीक है। if the sum is even, then find the probability, then find the probability, then find the probability, then find the probability that both the numbers are odd। देखो आज जितना सारा क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, सब में ही दिमाग जो है बहुत यूज करना पड़ता है। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये सब नंबर्स हैं। अब ये सब नंबर्स में से कोई भी दो नंबर रैंडमली सिलेक्ट कीजिए, कोई भी दो नंबर हो सकता है। अब कंडीशन ये है, जो दो नंबर आप चूज करेंगे वो दोनों नंबर का जो सम है, दोनों नंबर्स का सम इवन होना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन गिवन कंडीशन है, दैट मींस ये एक इवेंट हम लोग ले सकते हैं। सम दैट मींस सम ऑफ टू नंबर्स इज इवन। जो दो नंबर हम लोग चूज करेंगे, ये तो चूज हम लोग करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर मतलब कौन सा दो नंबर चूज करेंगे, ये भी क्वेश्चन में बोला गया है कि दो नंबर का सम इवन होना चाहिए, वही आप लोग चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो 1 से लेके 11 तक इवन नंबर कितना है? 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। ऑड नंबर कितना है? 1 3 5 7 9 11। दैट मींस इसमें कितना है? 5 है और इसमें 6। ऑड और इवन नंबर्स मैंने पार्ट कर लिया, ठीक है। क्योंकि क्यों मैंने पार्ट किया? देखो बोथ द नंबर्स आर ऑड। जो दो नंबर आपने चूज किया वो दोनों ऑड नंबर्स होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया, ऑड नंबर्स को अलग और इवन नंबर्स को अलग कर दिया मैंने। अब जो दो नंबर हम लोग चूज करेंगे वो दोनों नंबर प्लस करके सम जो है वो इवन आना चाहिए। अब मैं एक कॉन्सेप्ट बोलता हूं, वो आप लोग देखिएगा, एग्री करते हैं कि नहीं। अब दो इवन नंबर का प्लस करे या फिर दो ऑड नंबर्स का प्लस करे, सम ऑलवेज इवन नंबर आएगा। कोई भी दो ऑड नंबर मन में लो और प्लस करो, दो देखो इवन नंबर आता है कि दो ऑड नंबर या फिर दो इवन नंबर, दोनों ही ऑड नंबर होना चाहिए या फिर दोनों ही इवन नंबर होना चाहिए, तभी जाके सम जो है वो सिर्फ इवन आएगा। एक आपने ऑड लिया है और एक आपने इवन लिया है, दोनों का सम करेंगे कभी भी इवन नंबर नहीं आएगा। आप एग्जांपल ले सकते हैं, 5 ऑड नंबर, 2 इवन नंबर, 5 + 2 7 ऑड नंबर आ रहा है, इवन नंबर नहीं आ रहा है सम।
ऐसे आप हजारों करोड़ों एग्जांपल्स आप लेके चेक कर सकते हैं। एक ऑड नंबर एक इवन नंबर दोनों का सम करेंगे, कभी भी सम जो है वो इवन नंबर नहीं आएगा। तो इवन नंबर सम आने के लिए दोनों को ऑड नंबर होना चाहिए या फिर इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहां पर आइदर और केस आ गया है, आइदर और केस आ गया है। ठीक है, कैसे, मतलब यहां पर ऑप्शन आ गया है। आप परफेक्टली यहां पर नहीं जानते कि दोनों नंबर जो है वो क्या मैं ऑड चूज करूं या फिर इवन चूज करूं, क्योंकि दोनों ही पॉसिबल है। अब ऑड दोनों नंबर अगर ऑड चूज करें वो दोनों नंबर का सम भी इवन होगा, अगर दोनों नंबर आप इवन चूज करें वो दोनों नंबर का सम भी इवन ही होगा। तो मैं कौन सा दोनों नंबर यूज करूं, ऑड नंबर वाला यूज करूं या फिर इवन नंबर वाला यूज करूं? तो दोनों ही मुझे ऑप्शन में रखना पड़ेगा, आइदर ये सही होगा और ये सही होगा। जब ये सब ऑप्शन का बात आ जाता है, आइदर और केस आ जाता है, तब यूनियन वाला केस आ जाता है, यूनियन केस आ जाता है। ठीक है, और जब एंड वाला केस होता है तब इंटरसेक्शन वाला केस आ जाता है। दैट मींस ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। दैट मींस ऑड नंबर भी होगा, इवन नंबर भी होगा। तब मिडिल में इंटरसेक्शन, दैट मींस मल्टीप्लाई साइन देके प्रोबेबिलिटी आपको निकालना पड़ेगा, मल्टीप्लाई साइन देके प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा। जब ये आइदर और केस आ जाए, दैट मींस या फिर ऑड होगा या फिर इवन होगा, तब आपको यूनियन यूज करना है और बीच में प्लस साइन देना है, क्योंकि यूनियन को अगर मैं प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करूं तो प्लस देके ही आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं देखो, ये तो आप लिख लीजिए गिवन द नंबर्स, ये पूरा लिख लीजिए। ठीक है, A equals to two numbers are chosen and sum is even. ठीक है, सो यहां पर जब आप P ऑफ A निकालेंगे, दैट मीन्स ए इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तब प्रोबेबिलिटी आप किसका निकालेंगे, वो दो नंबर्स का निकालेंगे जो दोनों नंबर आपने चूज किया है। वो ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। ठीक है, देखो कैसे लिखते हैं, P टू ऑड नंबर्स और टू इवन नंबर्स। ठीक है, जब ये और वर्ड यूज हो जाए, क्योंकि दो ऑड नंबर का सम भी इवन होता है, दो इवन नंबर का सम भी इवन ही होता है, तो हम लोग परफेक्टली यहां पर कैसे बोले कि ये जो दोनों नंबर हमने लिया है वो ऑड ही लेंगे या फिर इवन ही लेंगे। कुछ भी आ सकता है, ऑड भी आ सकता है, इवन भी तो आ सकता है, तो पॉसिबिलिटीज है ना यहाँ पर, केस ऑप्शन है यहाँ पर आपके पास, आइदर ये और ये। तो दैट मींस तब जाके आपको ये कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो जब आप और यूज करेंगे तो प्लस साइन। तो पहले ऑड नंबर का निकाल लेते हैं। कितना ऑड नंबर आपको चूज करना है, दो ऑड नंबर चूज करना है। ऑड नंबर का यहाँ पर कितना है टोटल, 1 2 3 4 5 6, 6C2 सिलेक्शन है ना, दो ऑड नंबर आपको सिलेक्ट करना है आउट ऑफ 6, दैट मींस कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा। 6C2 आउट ऑफ टोटल कितना है यहाँ पर, टोटल नंबर्स कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11C2। ठीक है, 11 से भी तो मतलब टोटल में से तो भी तो आप दो चूज कर रहे हैं ना, प्लस दो इवन नंबर, इवन नंबर कितना है 1 2 3 4 5, 5C2 बाई 11C2। अब दोनों को प्लस करेंगे तो 11C2 नीचे रहेगा, 6C2 प्लस 5C2, ये P ऑफ
ए है। अब दो नंबर, आपने दो नंबर चूज किया है ना, तो कॉम्बिनेशन तो आपको यूज करना ही पड़ेगा। सिलेक्शन है, सिलेक्शन जहां पर आएगा वहां पर आप वो 5C2 6C2 वो तो आप यूज करेंगे, ठीक है। कॉम्बिनेशन तो यूज करना है। अब सेकंड इवेंट क्या है, बोथ द नंबर्स आर ऑड, तो नाम लिखो b इक्वल्स टू, ठीक है। अच्छा, यहां पर तो ये आ गया आपका ए इवेंट का प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब एक काम करें, लेट b इक्वल्स टू टू नंबर्स आर choosing, two odd number are choosing, ठीक है। अब A इंटरसेक्शन B निकालेंगे, A इंटरसेक्शन B क्या होगा, ये तो सिर्फ ऑड नंबर्स का है और ये तो ऑड और इवेंट दोनों मिलके हैं, तो दैट मींस कॉमन कौन सा आएगा, टू ऑड नंबर्स आर चूजिंग, ठीक है ना। ये तो दो ऑड नंबर दो इवन नंबर का है, ये सिर्फ दो ऑड नंबर का है, तो दोनों में ए इंटरसेक्शन बी कॉमन कौन सा आएगा, दो ऑड नंबर आएगा, है कि नहीं। तो दैट मींस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, आपको दो ऑड नंबर चूज करना है। ऑड नंबर का कितना है, 1 2 3 4 5 6 6C2 बाई 11C2 तो है, तो दैट मींस ये है पी ए इंटरसेक्शन। सो पी ऑफ P of B by A. So P of B by A निकालना है, क्यों, A तो यहां पर गिवन था, सम इज इवन, इसलिए तो A इवन नाम दिया। B मतलब क्या है, वो तो आपको निकालना है, इट मींस टू ऑड नंबर्स आर चूजन, है कि नहीं। सो P of B by A equals to P of A intersection B by P of A. So that means 6C2 by 5C2 plus 6C2, बस हो गया। 11C2 तो कैंसिल हो जाएगा, जरूरत नहीं है लिखना, तो इसका आप कैलकुलेशन कर लीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। So these are the solutions of the conditional probability. Okay, so from the next class we will solve the multiplication theorem concepts. So I think it was decided that in this lecture this multiplication theorem will be discussed, but actually it is already, this lecture is becoming very lengthy, so I think in the next lecture that will be better if we discuss this multiplication theorem in the next lecture. Okay, so पहले से मल्टीप्लिकेशन थ्योरम शुरू कर देंगे, फिर एकदम हम लोग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम रिलेटेड ही क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, ओके। एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस, इफ यू लाइक माय लेक्चर्स, देन प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल, ओके। एंड गिव द लाइक बटन आल्सो, गिव दिस लाइक, ओके। लाइक भी जरूरत है ना बहुत, आपको अगर पसंद आ रहा है लेक्चर्स तो आप लोग जो है वो लाइक एक दीजिएगा, ठीक है। इससे थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है, थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन मिलता है, ठीक है। बाय, जय हिंद।